Hello everyone, welcome back to CS Nursing Live. This is our biomedical waste management class 13 for Uttar Pradesh Nursing Officer 2026 and upcoming nursing officer and CHO exams. In today's class, we will discuss previous year MCQ, important concept, waste categories, color coding, segregation, disposable method, and exam-oriented question. This topic is very important for OCCC, CHO, NORCET, AIMS, and all nursing exam because questions are asked repeatedly from biomedical waste management. So watch the full class carefully and don't skip any part because every MCQ and concept is important for your exam. If you are new to the channel, don't forget to like, share and subscribe. Also join our WhatsApp group for notes, PDFs, MCQ and regular updates. Now let's start today's rapid MCQ session, class 13. Best of luck to all aspirants. Question number 31. Which of the following biomedical waste treatment method uses high pressure steam to sterilize waste? Option A incineration, option B autoclaving, option C microwaving, option D deep burial. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कचरा को तेज प्रेशर वाली स्टीम से स्टेरिलाइज किया जाता है। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग। ऑप्शन ए इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में कचरा को आग में जलाया जाता है। ऑप्शन सी माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हीट बनती है। ऑप्शन डी डीप बोरियल। डीप बोरियल में कचरा जमीन में गाड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature and pressure is standard autoclaving performed for biomedical waste treatment? Option A 100 degree Celsius at 10 psi for 30 minutes. psi का फुल फॉर्म है pounds per square inch. Option B 121 degree Celsius at 15 psi for 15 to 60 minutes. Option C 150 degree Celsius at 20 psi for 10 minutes. Option D 160 degree Celsius for 2 hours. The right answer is option B 121 degree Celsius at 15 psi for 15 to 60 minutes. बायोमेडिकल वेस्ट को ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 15 psi प्रेशर पर 15 to 60 मिनट के लिए रखा जाता है ताकि सभी बैक्टीरिया मर जाए। Why other option are wrong? Option A 100 डिग्री सेल्सियस at 10 psi for 30 minutes. 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। स्टेरिलाइज के लिए 121 डिग्री सेल्सियस जरूरी है। ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस at 20 psi for 10 minutes. 150 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव सेटिंग नहीं है। ऑप्शन डी 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स हॉट एयर ओवन की सेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which treatment method reduce combustible waste to unrecognizable small ashes using very high temperature? Option A microwaving, option B shredding, option C incineration, option D chemical disinfection. The right answer is option C इंसिनरेशन। इंसिनरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को इतनी तेज आग में जलाया जाता है कि वो जलकर राख बन जाता है। वह अदर ऑप्शन आर रॉन्ग। ऑप्शन ए माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग वेस्ट को डिसइंफेक्टेड करता है, जलाता नहीं। ऑप्शन बी श्रेडिंग। श्रेडिंग में वेस्ट को छोटा टुकड़ा में काटा जाता है। ऑप्शन डी केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में केमिकल से बैक्टीरिया मारते हैं, जला जाता नहीं। Next question, what is the primary environmental concern or hazardous emission associated with the incineration of chlorinated plastics? Option A carbon monoxide, option B digoxin and furans, option C methane gas, option D nitrogen dioxide. The right answer is option B डिगोक्सिन एंड फुरेंस। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक जैसे पीवीसी को जलाने से डिगोक्सिन और फुरेंस नाम की बहुत जहरीली और कैंसर करने वाली गैस बनती है। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग। ऑप्शन है कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड आम धुएं में होती है, स्पेसिफिक तो पीवीसी नहीं। ऑप्शन सी मीथेन गैस। मीथेन गैस कचरा सड़ने से बनती है, जलने से नहीं। ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आम पॉल्यूशन गैस है, डिगोक्सिन या फुरांस पीवीसी जलने का असर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैटेगरी इज इंसिनरेशन स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड? ऑप्शन ए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑप्शन बी एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑप्शन सी सॉइल्ड वेस्ट, ऑप्शन डी पीवीसी प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। The right answer is option D पीवीसी प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। पीवीसी प्लास्टिक और ई वेस्ट को जलाने बिल्कुल मना है क्योंकि इनसे डिगोक्सिन रिलीज होती है। Why other option are wrong? ऑप्शन ए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को स्पेशली इंसिनरेट किया जाता है। ऑप्शन बी एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को भी इंसिनरेट किया जाता है।
ऑप्शन सी सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट को भी इंसिनरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप बोरवेल इज परमिटेड ओनली इन टाउन्स विद ए पॉपुलेशन लेस देन, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5 लाख। डीप बोरवेल सिर्फ उन छोटे गांव में अलाउड है जहां की पॉपुलेशन 5 लाख से कम हो और जहां इंसिनरेटर ना हो। Next question, how deep should a trench be dug for the deep burial of biomedical waste? Option A 1 meter, option B 1.5 meter, option C 2 meter, option D 3 meter. The right answer is option C 2 मीटर। डीप बोरवेल के लिए जमीन में कम से कम 2 मीटर लगभग 6.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है ताकि कचरा सेफ रहे। Next question, use masks worn by healthcare workers should be discarded in which color bag? Option A red bag, option B yellow bag, option C black bag, option D blue bag. The right answer is option B yellow bag. यूज मास्क को सॉइल्ड या इन्फेक्टेड वेस्ट माना जाता है और इन्हें येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPE kits contaminated with infectious material must be disposed of in option A red bag, option B yellow bag, option C black bag, option C blue box. The right answer is option B yellow bag. इन्फेक्टेड पीपी किट्स को सॉइल्ड वेस्ट माना जाता है और इसे येलो बैग में डिस्कार्ड करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूज्ड ब्लड स्ट्रेन राइस ट्यूब मस्ट बी डिस्कार्डेड इन व्हिच कलर बैग? ऑप्शन ए रेड बैग, ऑप्शन बी येलो बैग, ऑप्शन सी ब्लू बैग, ऑप्शन डी व्हाइट कंटेनर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेड बैग। राइस ट्यूब एक प्लास्टिक ट्यूबिंग है, इसीलिए भले ही इस पर खून लगा हो इससे रेड बैग में डिस्कार्ड किया जाएगा ताकि स्टेरिलाइज करके रिसाइकिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूज एंडोट्रैकियल ट्यूब मेड ऑफ प्लास्टिक शुड बी डिस्पोज ऑफ इन व्हिच कलर बैग? ऑप्शन ए रेड बैग, ऑप्शन बी येलो बैग, ऑप्शन सी ब्लैक बैग, ऑप्शन डी ब्लू बॉक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेड बैग। एंडोट्रैकियल ट्यूब एक प्लास्टिक वेस्ट है, इसीलिए इसे रेड बैग में डाला जाता है ताकि ऑटोक्लेव करके रिसाइकिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट फ्रॉम वेटरनरी हॉस्पिटल और रिसर्च लैब्स मस्ट बी डिस्पोज ऑफ इन व्हिच कलर कोड बैग? ऑप्शन ए ब्लू बैग, ऑप्शन बी रेड बैग, ऑप्शन सी येलो बैग, ऑप्शन डी ब्लैक बैग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी येलो बैग। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को भी इंसानों के अंग की तरह येलो बैग में डाला जाता है ताकि उन्हें जलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल शुड बी डिस्पोज ऑफ इन व्हिच कलर बैग या कंटेनर? ऑप्शन ए रेड बैग, ऑप्शन बी येलो बैग कंटेनर, ऑप्शन सी ब्लू बॉक्स, ऑप्शन डी व्हाइट कंटेनर। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी येलो बैग या कंटेनर। हॉस्पिटल में बचा हुआ या एक्सपायर्ड केमिकल वेस्ट येलो बैग या येलो कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should a nurse do immediately after sustaining a needle stick injury while drawing blood from a patient? Option A squeeze the finger to bleed it out, option B wash the site with soap and water, option C apply a strong antiseptic like alcohol, option D cover it with a bandage and ignore it. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वॉश द साइट विथ सोप एंड वाटर। अगर गलती से सुई चुभ जाए तो सबसे पहले उस जगह को बिना दबाए साबुन और पानी से धोना चाहिए। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग? ऑप्शन ए स्क्वीज द फिंगर टू ब्लीड इट आउट, स्क्वीज कर मना है क्योंकि इससे टिश्यू डैमेज होता है। ऑप्शन सी अप्लाई ए स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक लाइक अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक लगाने टिश्यू को जलाता है। प्लेन सोप वाटर वेस्ट है। ऑप्शन डी कवर इट विथ ए बैंडेज एंड इग्नोर इट, इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है, HIV या हेपेटाइटिस बी रिस्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following virus carry the highest risk of transmission following a needle stick injury? Option A HIV, option B hepatitis C virus, option C hepatitis B virus, option D Ebola virus. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वायरस। नीडल स्टिक इंजरी के बाद हेपेटाइटिस बी वायरस फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, HIV और HCV से भी ज्यादा कॉन्टाजियस। स्वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग। ऑप्शन ए HIV का ट्रांसमिशन रिस्क HPV के मुकाबले बहुत कम होता है। ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस का रिस्क इंटरमीडिएट होता है। ऑप्शन डी इबोला वायरस, इबोला आम नीडल स्टिक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ रिकैपिंग यूज नीडल इज
Option A, recommended to prevent injury. Option B, strictly prohibited. Option C, allowed only if done with both hands. Option D, allowed only in operation theater. The right answer is option B, strictly prohibited. एक बार यूज की हुई नीडल को वापस कैप लगाने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चोट लगने का डर होता है। वही अदर ऑप्शन आ रहा ऑप्शन ए, रिकमेंडेड टू प्रिवेंट इंजुरी। रिकेपिंग इंजुरी का मेन कारण है इसीलिए रिकमेंडेड नहीं करती। ऑप्शन सी, अलाउड ओनली इफ डन विद बोथ हैंड। दोनों हाथों से रिकेपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऑप्शन डी, अलाउड ओनली इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में रिकेपिंग मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, or if recapping a needle is absolutely unavoidable, which techniques must be used? Option A, two-handed techniques. Option B, single-handed scoop techniques. Option C, assistant techniques by colleagues. Option D, pressing against the wall. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंगल हैंडेड स्कूप टेक्निक्स। अगर नीडल को कैप लगाने बहुत ही ज़रूरी हो तो हमेशा एक हाथ से कैप उठाने वाली टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग? ऑप्शन ए, टू हैंडेड टेक्निक्स। टू हैंडेड टेक्निक्स में सुई लगने का सबसे ज़्यादा डर होता है। ऑप्शन सी, असिस्ट टेक्निक्स बाय कलीग्स। कलीग्स की हेल्प लेने से दोनों को चोट लग सकती है। ऑप्शन डी, ब्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल। दीवार पर दबाकर कैप लगाना अनसेफ प्रैक्टिस है। Next question, which organization or authority is responsible for granting authorization to a hospital for biomedical waste generation and handling? Option A, Ministry of Health and Family Welfare. Option B, State Pollution Control Board या Pollution Control Committee. Option C, World Health Organization. Option D, Indian Medical Association. The right answer is option B, State Pollution Control Board या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हॉस्पिटल को बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट और हैंडल करने की लीगल परमिशन देता है। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग? ऑप्शन ए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्टर गाइडलाइंस बनाती है। डायरेक्ट ऑथराइजेशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है। ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO इंटरनेशनल बॉडी है, लोकल ऑथराइजेशन नहीं देता। ऑप्शन डी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी operator must ensure that biomedical waste is collected from the hospital at least once in every. Option A, 12 hours. Option B, 24 hours. Option C, 48 hours. Option D, 7 days. The right answer is option B, 24 आवर। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की गाड़ी हॉस्पिटल आकर हर 24 घंटे में कचरा उठाने के लिए बाउंड होती है। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग? ऑप्शन ए, 12 आवर्स। 12 आवर्स जल्दी है, रूटीन कलेक्शन 24 आवर्स में होता है। ऑप्शन सी, 48 आवर्स। 48 आवर्स हॉस्पिटल का मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है, पर कलेक्शन 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी, 7 डेज। 7 डेज तक वेस्ट रखना कानून मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल व्हाट डज द टर्म CBMWTF स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए, सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग फैसिलिटी। ऑप्शन बी, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ऑप्शन सी, सेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फाउंडेशन। ऑप्शन डी, कॉम्प्रिहेंसिव बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी। The right answer is option B, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से CBMWTF का फुल फॉर्म कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, जहां सब हॉस्पिटल का कचरा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड रीयूज what is the mandatory physical treatment required for items like syringe, IV bottles and catheter before disposal? Option A, incineration. Option B, mutilation or shredding. Option C, deep burial. Option D, freezing. The right answer is option B, म्यूटिलेशन और श्रेडिंग। सिरिंज, आईवी बोतल आदि को फेंकने से पहले श्रेडिंग या म्यूटिलेशन बर्बाद करना जरूरी है ताकि कोई उन्हें धोकर वापस ना यूज करे। वह अदर ऑप्शन आर रॉन्ग। ऑप्शन ए, इंसिनरेशन। प्लास्टिक को इंसिनरेट करने स्ट्रिक्टली मना है। ऑप्शन सी, डीप बुरियल। डीप बुरियल बिना म्यूटिलेट किए नहीं करते। ऑप्शन डी, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग से वेस्ट सेफ या अनसेफेबल नहीं बनता। Next question, use intact glass test tube containing blood sample must be first treated with sodium hypochlorite and then disposed of in. Option A, red bag. Option B, yellow bag. Option C, blue cardboard box. Option D, white container.
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स। खून वाली सबूत ग्लास ट्यूब्स को पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड में डालकर डिसइंफेक्टेड करते हैं और फिर कांच होने के नाते ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, use sanitary napkins, diapers and incontinence pads from the hospital. What should be disposed of in which color bag? Option A red bag, option B yellow bag, option C green bag, option D blue box. The right answer is option B yellow bag. use sanitary napkins, diaper और pads को infectious soil waste माना जाता है, इसीलिए इन्हें हमेशा येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। Next question. Liquid waste generated from laboratory or washing area must be treated with at least 1 to 2% sodium hypochlorite for a minimum contact time of option A 5 minutes, option B 10 minutes, option C 30 minutes, option D 60 minutes. The right answer is option C 30 minutes. लेबोरेटरी का गंदा लिक्विड वेस्ट नली में बहाने से पहले उसमें 1 to 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड डालकर कम से कम 30 मिनट तक छोड़ना चाहिए ताकि बैक्टीरिया मर जाए। Next question. In the context of biomedical waste management, what is a barcode system primarily used for? Option A to calculate the hospital bill. Option B to track the movement biomedical waste from generation to treatment. Option C to identify patient details on sample. Option D to order new supply. The right answer is option B to track the movement of biomedical waste from generation to treatment. बारकोड सिस्टम का यूज कचरे की थैलियों को ट्रैक करने के लिए होता है ताकि पता चले कि कचरे सही से ठीक हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एक्सरे फिल्म्स एंड लीड कंटेनिंग मटेरियल्स शुड बी ऑप्शन ए इंसिनरेटेड इन ए येलो बैग, ऑप्शन बी हैंडेड ओवर टू ऑथराइज्ड रिसाइकल्स फॉर ए हेवी मटेरियल रिकवरी, ऑप्शन सी डिस्पोज ऑफ इन जनरल वेस्ट, ऑप्शन बी बोरियड डीप अंडरग्राउंड। The right answer is option B, handed over to authorized recyclers for a heavy metal recovery. एक्सरे फिल्म्स और लीड्स अफ्रोन में हेवी मेटल होते हैं, इसीलिए इन्हें आम कचरा में ना फेंक कर ऑथराइज रिसाइकिल कर दिया जाता है। Next question. A plastic suction bottle used in the operation theater after emptying the fluids and disinfecting should be discarded in option A red bag, option B yellow bag, option C blue bag, option D general waste. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेड बैग। ऑपरेशन थिएटर की प्लास्टिक सक्शन बॉटल को फ्लूइड खाली करके धोने के बाद रेड बैग में डालते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड ट्यूमर सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एंड लेटर डिस्कार्डेड फ्रॉम द लेबोरेटरी इज कंसिडर व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट एंड इन व्हिच बैग मस्ट इट गो? ऑप्शन ए सॉइल वेस्ट येलो बैग, ऑप्शन बी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट येलो बैग, ऑप्शन सी सॉलिड वेस्ट रेड बैग, ऑप्शन डी केमिकल वेस्ट ब्लू बॉक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट येलो बैग। सर्जरी में निकला कोई भी ट्यूमर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है और इसे हमेशा येलो बैग में डाला जाता है। वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग? ऑप्शन ए सॉइल वेस्ट येलो बैग, ये सिर्फ सॉइल वेस्ट नहीं प्योरली एनाटॉमिकल वेस्ट है। ऑप्शन सी सॉलिड वेस्ट रेड बैग, रेड बैग में इंसानी अंग नहीं डालती। ऑप्शन डी केमिकल वेस्ट ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स कांच और मेटल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मोमीटर शुड नेवर बी ऑप्शन ए स्वीप्ड अप विथ ए ब्रूम और वैक्यूम, ऑप्शन बी पिक्ड अप यूजिंग कार्डबोर्ड पीसेस, ऑप्शन सी कीप्ड इन ए सील्ड ग्लास कंटेनर, ऑप्शन डी ट्रीट एज ए hazardous केमिकल वेस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्वीप्ड अप विथ ए ब्रूम और वैक्यूम। टूटे हुए थर्मोमीटर का पारा जहरीला होता है, इससे कभी भी झाड़ू या वैक्यूम से नहीं साफ करना चाहिए वरना हवा में उसका फ्यूम्स फैल जाएगा। वही अदर ऑप्शन आर रॉन्ग? ऑप्शन बी पिक्ड अप यूजिंग कार्डबोर्ड पीसेस, कार्डबोर्ड पीसेस यूज करके जेंटली उठाना सही तरीका है। ऑप्शन सी कीप्ड इन ए सील्ड ग्लास कंटेनर, इसे सील कंटेनर में ही रखना चाहिए। ऑप्शन डी ट्रीट एज ए hazardous केमिकल वेस्ट, मर्क्यूरी एक hazardous वेस्ट है, ये बात सही है पर ऑप्शन ए स्ट्रिक्टली नॉट टू डू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट कंटेनिंग मर्क्यूरी मस्ट बी ऑप्शन ए इंसिनरेटेड इन ए येलो बैग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव इन ए रेड बैग, ऑप्शन सी सेंट टू एन ऑथराइज्ड hazardous वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन डी डिस्कार्डेड इन ए वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर।
The right answer is option C. Sent to an authorized hazardous waste facility. मरकरी वाला वेस्ट एक hazardous chemical waste है। इससे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट में ना डालकर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टोरेज या डिस्पोजेबल फैसिलिटी में भेजा जाता है। Why other option are wrong? ऑप्शन है इंसिनरेट इन ए येलो बैग। मरकरी को इंसिनरेट बिल्कुल मना है क्योंकि टॉक्सिक धुआं बनेगा। ऑप्शन बी ऑटोक्लेव इन ए रेड बैग। ऑटोक्लेव इसके लिए नहीं है। ऑप्शन डी डिस्कार्ड इन व्हाइट फंक्शन प्रूफ कंटेनर। व्हाइट कंटेनर आम सार्क के लिए है। हजार्डियस मर्क्यूरी यहाँ नहीं डालती।